जी खवातीन वेलकम बैक पाकिस्तान टेलीविजन के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड पहला टेस्ट मैच तीसरे रोज का इख्तिताम। 556 रन पाकिस्तान ने बनाए थे, 60 रन की ट्रेल रह गई है और इंग्लैंड ऐसा लग रहा है कि शायद पाकिस्तान को अब यहां से भागने का मौका नहीं देगा। जी माही। Shahzad, day three of the first test from Multan, a typical batting wicket. We were, preempting this that England is going to take on the Pakistani bowlers. The only saving grace for us could have been good line and length by our bowlers. Were we able to do that today? Were our bowlers good enough? Is their fitness up to the mark? We've got our expert in the studio with us today. So let's have a look at the match summary and then we'll throw our questions at our expert. जी, तो So, ऑब्वियसली इंग्लैंड की फर्स्ट इनिंग्स के हवाले से ही बात करते हैं। तकरीबन उन्होंने हमसे काफी कम ओवर्स में 492 रन बना दिए, 3 विकेटों के नुकसान पर। रूट ऑब्वियसली स्टिल ऑन द क्रीज, 176 नॉट आउट ऑफ 277। हैरी ब्रुक स्टिल ऑन द क्रीज, 141 नॉट आउट। डकेट 84, 75 and Colley 78। Shahzad, where we're speaking about Root's 176, Root has now surpassed Sir Alistair Cook's record of the highest test runs in test matches. So, congratulations to Joe Root. Yeah. And not just that, he's on number 6 in most centuries in test as well now. Yeah, so imagine. Wow. So the most run getter for England. And then on number 6, we got the likes of Sachin Tendulkar, Sangakkara, and all of those people. So Joe Root, first of all, let's get started with him. He's a modern day great batsman, I think. Typical Englishman, a great character, and a great guy at the same time. He laughs, he has fun, and he plays the game that, जो रिक्वायरमेंट है टुडेज क्रिकेट की उस तरह खेलता है. I mean, good strike rate. I mean, amazing strike rate, not good strike. Amazing strike rate. I mean, he knows he's a proper batsman with a flamboyant kind of attitude. So I think he was brilliant. ये proper batsman है. ये proper Englishman batsman जिसको आप देख रहे हैं. True. And he's beautiful to watch. He's just amazing. It's the stance, the way that he makes his strokes, the way that he plays, the follow on. I mean, everything kind of settles in. I mean, it's like a treat to watch. It's like an ice cream for a kid. That's exactly how it is to look at Joe Root. और शुएब भाई, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि कल आप आए, आपने इनिंग्स का आगाज किया और उसके बाद आप आज पूरा दिन खेले. हाँ. That's something which is of most important जो एस्पेक्ट है इनके बल्लेबाजी का, कि आज पूरा दिन ये खड़े रहे. कहीं कोई डिहाइड्रेशन लगी, हल्का सा लगा के निकल आया, या हैमस्ट्रिंग का मसला था, बट ही पुल्ड Cramping. And Cramping. end में थोड़ा सा था, and even though they had an option कि वो retired hurt हो सकते थे, but he didn't give up. That is where their courage and their willingness to play comes in. मैंने आपसे कहा था ना, पहले दिन भी कहा था 250 करेंगे, बिल्कुल. ये 250 करेंगे, तो वो इस तरफ जा रहे हैं. ये मैंने आपसे कहा था ना, बिल्कुल जी कहा. मौजूद है ना आपके पास. जी. तो ये 250 करेंगे. Again, I mean, we're talking about the modern great, which is Joe Root. I think it's been amazing. He's been amazing for the last 10 years. Simple as. And for him to just go out there and score some runs, nothing amazes me. एग्जैक्टली यहीं से ज़रा कंटिन्यू करता हूँ. ऑब्वियसली इज़ नॉट ऑन द क्रीज नाउ. मैं बेन डकेट के हवाले से ही बात करना चाहता हूँ. 75 गेंदों पे उन्होंने 84 रन बनाए और एक बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ खेला. बैस बॉल की जो डेफिनेशन है वो बेन डकेट की शक्ल में नजर आई. अपनी फॉर्म में रहे, मेड श्योर दैट ही इज़ गोइंग टू यूटिलाइज ऑल द स्ट्रोक्स दैट ही इज़ गॉट. And he was phenomenal even in the post match. He spoke about it, that that's what the goal was, and we made sure that we're going to deliver it. तो उनसे पूछा भी गया कि यार अब आप अगले दिनों में क्या देखते हैं. उन्होंने कहा we will continue to do so. So no matter what happens, Pakistan was slower on the pace in making runs, but we'll make sure that that we do it in a record time. That's what तुमने we did. जवाब दे दिया ना बीच में. हाँ. अब बता दो जब वापस आए. तो यही सवाल था, यही जवाब था. लेकिन अब शुएब भाई सवाल यहाँ पे एक और बनता है, क्या शान अभी तक, क्योंकि आज शान स्ट्रगल करते हुए नजर आए कि मैं शाहीन से गेंद कराऊं, फिर मैं अबरार को बीच में लेकर आऊं, फिर मैं नसीम से कराऊं, मैं आमिर से, कोई राइटफुल कॉम्बिनेशन शान आज नहीं बना सके. उसमें सऊद को भी लाए, साइम को भी लाए, फिर उसके बाद सलमान अली आगा को भी लेकर आए. वो राइटफुल कॉम्बिनेशन नहीं नजर आया बॉलिंग का. यार देखो, फास्ट बॉलर कैन ओनली बॉल अराउंड बट 20 ओवर्स, मैक्स 15. अगर अच्छे फास्ट बॉलर हैं, तगड़े फास्ट बॉलर जो अपना शाहीन शाह ने किया आज, तो अनफॉर्चुनेटली अबव 20 एंड बियॉन्ड थोड़ा ज़्यादा हो जाता है. आई मीन ही ओनली हैव ऑप्शंस ऑफ बिटवीन देम टू. सो ही इज़ लर्निंग एट द सेम टाइम. यार उसके पास एमिनेशन पूरा नहीं, लेट्स पुट इट दिस वे, एमिनेशन पूरा नहीं है. हैड दैट शाहीन अगर was firing, तो would have been much easier for Pakistan to get contain England. ठीक In है. terms of यार इनको शायद हम 350 कराते, 300 कराते, 330 कराते, but unfortunately
Shine wasn't up to the mark. Naseem was, but the rest of the bowlers, आप इब्रार की बात करें, जमाल की बात करें, तो आप उनसे तो कंटेन करने से रहे ना. This is what you have, but you know, Shine obviously यार टेस्ट क्रिकेट बहुत लेट खेलता है, बहुत महीनों बाद खेलता है, तो इट्स becomes difficult for him at the same time bowling about, you know, क्या 19 overs, 19 ओवर का 19 ना, तो कल भी कराने हैं ना, हाँ. 10 तो कल भी कराने हैं, 29 हो जाएंगे. है. सही है. मिनिमम 10 तो और कराने हैं. नसीम को भी 10 कराने हैं, तो उसके कितने हो नसीम से जाएंगे? 21 हुए. तो 31 हो जाएंगे. बिल्कुल. सो देखें सर, अगर आप 31 ओवर इन इनिंग्स करा रहे हैं, तो लिटरली ये कोई 10 को T20 बन जाते हैं. ट्रू. लिटरली इन बिटवीन 2 ऑफ देम ये तकरीबन कोई 15 T20 बन जाते हैं. इतने का तो वो सीजन खेलते हैं. ट्रू. For them to ask to bowl like this, it's not easier as a fast bowler, but it's difficult for them. अगर वो कंटिन्यूसली क्रिकेट खेलते रहते, अगर वो साल के 18 टेस्ट मैचेस खेलते हैं, 20 खेलते हैं, तो then I would expect them to run in and to bowl like this. But again, he's trying his best. He's a good kid, and he's trying his best. But unfortunately, his pace is not there. His firing ability is not there. So, yeah. शहजाद, जहां हम बात करते हैं हमारे गेम की, यू स्पोक अबाउट शान मसूद एंड हिज प्लान विद द बॉलर्स. देयर वाज अ लैक ऑफ प्लान व्हिच वाज एविडेंट. कल जब सलमान अली आगा से पूछा गया, उन्होंने अपने पोस्ट मैच इंटरव्यू में भी यही कहा कि जब मैं खेलने गया तो मुझे कोचिंग स्टाफ की तरफ से या कैप्टन की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दी गई थी. आई जस्ट प्लेड विद माय ओन गट फीलिंग. तो इज देयर अ लैक ऑफ प्लान? इज देयर नो कम्युनिकेशन? सोलो चाहिए यहाँ पे. कोई कम्युनिकेशन नहीं नजर आ रही हमें. ड्रेसिंग रूम में कम्युनिकेशन नहीं है, कोचेस के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है. ये क्यों हमें इतने अरसे से ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन और एक हम गेमर हैं ना सारे. ये क्यों? व्हाई इज दिस हैपनिंग? जी शेर भाई. यार आपको पता ही है पाकिस्तान क्रिकेट का क्या हाल है, तो अब मैं क्या कहूँ इस पे. मैक्सिमम मैं क्या कह सकता हूँ, यही है आपके सामने, जो है आपके सामने है, बस ऐसे ही है. हमें क्रिटिसाइज करके फ़ायदा भी कोई नहीं, जी. और इनको कह के भी कोई फ़ायदा नहीं. बट द थिंग इज देयर इज़ नो कम्युनिकेशन, देयर इज़ नथिंग. आई मीन लाइक व्हाट आर यू गोना से? आई मीन लाइक 100 कितने उन्होंने 492 कितना किया है? 142 ओवर में 492 492 492 142 ओवर्स में किया ना जी. 101 ओवर में 101 सॉरी, तो 492 101 ओवर में किया था. 10 उन्होंने बता दी. 500 हमने स्कोर किया 100 ओवरों में. जी. 250 उन्होंने 50 और हमने 149 में किया. 50 ओवरों का फर्क है. वही नहीं यार, तुम्हारा वही सवाल था, तुम्हारा वही जवाब था, विच इज यार आप किस तरह की ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे हो और दुनिया किस तरह खेल रही है. इतनी आसान विकेट पे आप 100 बॉल एक्स्ट्रा नहीं ले सकते हो. I mean, obviously, he's a young captain, he's a young team, he's a young coach. Again, I don't understand what to criticize. हाँ, मतलब किसको क्या कहें? किसको क्या कहें? क्या बस सब तो ठीक पता ही है, आपको. जो चल रहा है उसे चलने दे, बस इस तरह ही कह सकता हूँ. और कुछ नहीं देखने कह सकता. वालों को, जैसा कि माहीन है, हमारे जितने भी और चाहने वाले, क्रिकेट के चाहने वाले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, उनको पता नहीं, कोई दिल में ना ऐसे जैसे कहते हैं आप, सबको दर्द होता है यार, मुझे भी तकलीफ होती है. बट थिंग इज, ये बच्चे हैं हमारे यार. लेकिन अब इन बच्चों को मैं क्या कहूँ. आई मीन लाइक जिस तरह वो ट्रेंड बेचारे हुए थे 5-10 साल में, वैसे वो डिस्प्ले कर रहे हैं. अब इनको मैं क्वेश्चन देना चाहूँ तो क्वेश्चन ऐसे दे सकता हूँ यार. आप टेस्ट मैच कितने देते हो इनको बेचारों को? कम खेलते हैं. क्या खेलते हैं? 8 टेस्ट मैच, 6-7 टेस्ट मैच 12 महीनों में. और फिर आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ऐसे बिहेव कर जैसे उन्होंने साल के 25 टेस्ट मैच खेलते हैं या 22 टेस्ट मैच खेलते हैं. और अगर बाबर ने 100 टेस्ट मैच अभी तक नहीं खेले तो किसका कसूर है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ना यार. अजहर अली की नहीं 100 हुए. हाँ एग्जैक्टली. तो आप टेस्ट क्रिकेट खेलते ही नहीं हो तो फिर कैसे बिहेव करेंगे? सो आई डोंट ब्लेम देम, आई डोंट क्रिटिसाइज देम, बट ठीक है जो है, दिस इज द बेस्ट यू हैव. ओके. And unfortunately, where we put all the blame on the pitch and the wicket, हमारे एक फॉरेन क्यूरेटर है, उनसे जब सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि जी देखें, विकेट उस तरह की है, we've put our maximum effort into it, it's literally like a bed of feathers under that top. Green top होगी, लेकिन उसको, he said there's nothing in the soil, this is the maximum that we can do. नहीं, लेकिन जो कॉमेंट्स बॉक्स से जो खबर आ रही थी वो ये आ रही थी कि क्यूरेटर सेड कि एवरी सिंगल डे द पिच इज गोइंग टू चेंज इट्स बिहेवियर, बट दैट्स नॉट हैपनिंग. क्या हमें आज तक अपने होम ग्राउंड का बेनिफिट नहीं लेने आया, एडवांटेज नहीं लेना आया? हमने बांग्लादेश के खिलाफ 6 mm 9 mm घास छोड़ी, उसके ऊपर भी कुछ नहीं हुआ. इधर घास छोड़ी, अब इंग्लैंड हमें पीछे छोड़ने को लगा हुआ है. देखिए घास छोड़ने से तो कुछ नहीं होता ना, नीचे क्या है सरफेस में उसकी बात करें ना. वो तो रॉक सॉलिड. तो ऑब्वियसली अब उसकी प्रिपरेशन में अब कितना टाइम इन्वेस्ट हुआ.
मुझे नहीं पता इसका। वो हफ्ता पहले तैयार हुई है, 3 दिन पहले तैयार हुई है, 10 दिन पहले तैयार हुई है, वो पर साल से पहले प्लानिंग हो रही थी। ऑफ कोर्स यू नो द आंसर। साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमने तेज़ विकेटें बनानी थी, हमने बना के दिखाई। एटिक्सन हमारे वो थे क्यूरेटर, तो उन्होंने विकेटें तेज़ बना के दिखाई, कोई मसला नहीं। बॉल कैरी भी कर रहा था, बेहतरीन जा रहा था और मुंह पे लग भी रहा था बॉल, तो कोई मसला नहीं। देखिए इंटेंट, तवज्जो है, ख्याल करना, तो थोड़ा सा ख्याल करना और इंटेंट शो करना, बस दैट्स इट। ज़िंदगी टोटल खेल इतना है, ट्रू, थोड़ा ख्याल करना और थोड़ा इंटेंट शो करना। बिल्कुल। टोटल मंत्रा ये ज़िंदगी का यही है, मैं तो यही समझा हूँ आज तक। तो इंटेंट इज़ देयर, और बैट्समैन ने क्या ख्याल करना, तो दिल लगा के काम करना और थोड़ा बिल्कुल। ख्याल करना। I don't think they given enough time to curator to to prepare the wicket that what they're looking for. I don't blame the curator. No. Yeah. बट यहाँ मेरा छोटा सा एक Go और on. सवाल भी है। सी वी सीन द विकेट्स इन दुबई एंड शारजा। दुबई और शारजा के मुकाबले में मुल्तान तो इतना ड्राई नहीं होगा। इफ दे हैव द रिसोर्सेज टू ब्रिंग इन द रिक्वायर्ड सॉइल टू मेक दोज पिचेस, क्या पीसीबी के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो आके उस तरह की सॉइल लेके आए, इंपोर्ट करें और फिर अपने पिचेस पे काम करें? Madam, you're activating my cricketing brain now. These cities are on the coastline, Dubai and Abu Dhabi. Coastline से होता ये कि शाम को ब्रीज चलती है, जिसे कहते हैं कि brings a dew factor, and रेगिस्तान की अपनी ड्यू होती है शाम के वक्त। ठीक है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द वेदर, सितंबर अक्टूबर है, आप किस महीने में हैं, और आप अगर दिसंबर में हैं तो ड्यू फैक्टर वहाँ गिर जाता है। ड्यू फैक्टर का मसला ये है कि बेसिकली ग्राउंड जो है दुबई का वो सैंड के ऊपर है, जो विकटें हैं वो रॉक सॉलिड है, राइट। और जब उसके ऊपर थोड़ी ड्यू गिरती है और जब वो मिट्टी, काली मिट्टी जुड़ना शुरू होती है, वो इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। राइट। जब वो इकट्ठा शुरू होते हैं उसके ऊपर हैवी रोल करें फर्स्ट इनिंग्स में, जैसे कप्तान मोस्टली मांगते हैं, तो वो अच्छा एक इवन बाउंस के साथ और ड्यू के साथ वो निप थ्रू करता है, वो स्किड थ्रू जिसे कहते हैं। ठीक है। Right. वो होता है। मुल्तान इज नॉट ऑन द कोस्ट लाइन, दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज। इट्स सच अ ड्राई लैंड जहाँ पे आपको तकरीबन आपको 25 से 30 दिन पहले विकेट तैयार करनी पड़ेगी, ओके। और उसको नर्चर करना पड़ेगा उस विकेट को, पानी दे रहे हैं, सब कर रहे ताकि वो पानी नहीं, रोल है, पानी है, फिर उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी का एक और लेयर्स हैं, फिर उसके बाद घास छोड़ना है, फिर कटाई है, कितनी कटाई है, कितनी छोड़नी है, इट्स अ होल लॉट ऑफ साइंस। तो ये आप 30 दिन पहले विकेट बनाते हैं, 26 घंटे पहले नहीं। राइट। और अगर आप मट्टी शायद बाहर से ले भी आएंगे मुल्तान में, अगर आप वो प्लेस करेंगे तो थोड़े से बाद जितना सेका पड़ेगा शायद उसका इम्पैक्ट वो ना रहे। अब एक और चीज़ कि भाई अब मुल्तान में कवर्स का भी बड़ा ताल्लुक है हाँ जी। इससे, कवर्स का भी बहुत ताल्लुक है, बिल्कुल ऐसे ही। और अनकवर्ड विकेटों का भी बहुत ताल्लुक है। यार देखो ना, मुल्तान में कौन स्क्वायर कवर करेगा? 11 महीने कवर स्क्वायर कवर रहा है, खुला पड़ा हुआ था। बिल्कुल। तो अनट्रीटेड सॉइल है, तो जिसकी वजह से, बट द थिंग इज दे ट्राइंग देयर बेस्ट यार। लोग पाकिस्तान मैनेजमेंट एंड पाकिस्तान पीसीबी क्रिकेट बोर्ड ट्राइंग देयर बेस्ट। उन्हें घास छोड़ के शायद बॉल निप थ्रू करें और रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट हो। अब रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट ऐसी ही हो सकती है कि पाकिस्तान हैज टू बैट सो वेल, जो मैंने आपको कल भी कहा, बिल्कुल। कि दे हैव टू सेव दिस गेम थ्रू द बैटिंग, एग्जैक्टली। दे हैव टू गो टुवर्ड्स द ड्रॉ नाउ। Okay, I think that's a big news. But very quickly, just to wrap this subject up as well. अगर हमें पता था कि हम मुल्तान में टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं, हमने जब टीम सिलेक्शन की, अब मैं अक्रॉस फॉर्मेट लेके जा रहा हूँ बात को, ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा मेरिट पे नहीं है, लेकिन मोहम्मद अली को हमने पाकिस्तान सुपर लीग में मुल्तान में बहुत सारी विकेट्स लेते हुए देखा, अमंग्स हाईएस्ट विकेट टेकर्स थे जब तक पीएसएल मुल्तान में हो रहा था। हमने मोहम्मद अली को अप्लाई किया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिंडी में। अगर मुल्तान में ही मैच हो रहा था, उन कंडीशंस के प्लेयर्स जो वहाँ खेलते हैं, उन ग्राउंड्स में खेलते हैं, उनकी सिलेक्शन रन ऑफ द मिल थिंग्स नहीं की जा सकती ना। रन ऑफ द मिल थिंग कैसे? अब आप उनके प्लान्स हैं, कप्तान के प्लान्स हैं, कोच के हैं, बोर्ड के हैं। आई थिंक इस तरह नहीं होता कि उन्होंने आउट किए तो खिला दें, पीएसएल में आउट किए तो खिला दें। इब्रार भी पीएसएल से निकला ना, तो खिला दिया आपने, उसको तो टेस्ट क्या हो गया? PSL is not, PSL is हमारे लिए not, मिस्ट्री बन गई। हाँ, PSL इज नॉट द मेरिट ये होता है कि आप तकरीबन कोई 24 गेमें खेले हो, 30 गेमें खेले हो फर्स्ट क्लास के, फिर उसके बाद मैं देखता हूँ क्या हिसाब किताब। 30 गेमें तो खेलो ना, 25 गेमें तो मैंडेटरी है ना। एग्जैक्टली। तो 25 के बाद मैं डिसाइड करूंगा यार कि आप में क्या वो चीज़ है जिसकी वजह से मैं आपको सेलेक्ट करूँ पाकिस्तान टीम में। ठीक है। और अभी जो चीज़ मेरा ख्याल है हमारे पास क्रीज पर मौजूद है,
वो हैरी ब्रुक है और जो रूट है जरा हैरी ब्रुक की जाने पढ़ना चाहता हूँ, जो कि हमने मैच शुरू होने से पहले इनके हवाले से आपने अंदिया दे दिया कि जब जितने अर्थात ये आते रहेंगे डाउन दी ऑर्डर हमें तकलीफ होती और रहेगी। शहजाद जहाँ आप हैरी ब्रुक की बात करें, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हैरी ब्रुक वाज आल्सो डिस्कवर्ड ड्यू टू द पीएसएल बिकॉज ही यूज्ड टू प्ले फॉर लाहौर कलंदर्स। Yup. सो एक और पीएसएल की फाइन, बट अ वेरी गुड फाइन बाय द इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड। और हमारी एक गुड इंग्लिश फाइंड का फायदा ये है ना कि वो टेस्ट मैच में वो करेगा कल 250, हाँ, वो कल एम करेगा 300 का एम करके आ रहा है। और इसके ज्यादा रिकॉर्ड्स हैं भी पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो सारे रिकॉर्ड्स हमारे खिलाफ ही बनते हैं, वरना 550 बना के कोई टीम आज तक टेस्ट मैच हारी नहीं है। ये पता है आपको। आई थिंक तो जितने भी रिकॉर्ड्स बन रहे हैं वो अनफॉर्चुनेटली हमारे खिलाफ। लेकिन जो शुएब भाई ने बात की मैं उसको सेकंड करता हूँ। देखें अगर पाकिस्तान की बल्लेबाजी की बात करते हैं, 556 रन इन्होंने बनाए, बेशक हमने उस रन रेट के साथ बनते भी नहीं देखे, दे बैटेड वेल। हम उसमें शान की बात करें, अब्दुल्ला की बात करें, सऊद अनफॉर्चुनेटली वाज एक्सपेंसिव बट रूट गॉट एक्सपेंसिव एज वेल। ठीक है, डाउन दी ऑर्डर सलमान अली आगा को हमने सेंचुरी बनाते हुए देखा, तो बैटिंग डिड वेल। अब अगर नहीं है विकेट में कुछ भी तो बॉलर बेचारा क्या कर सकता है? आई मीन देयर इज लिटिल दैट ही कैन डू। अब इंटिमिडेट करने वाले नहीं है हमारे पास वही प्लेयर्स है, वही आर्मरी, हमने उसी को यूटिलाइज करना है। लेंथ यूज की ना नसीम शाह ने, नसीम ने बिल्कुल नसीम ने यूज आज की। लेंथ यूज की ना, उसने अंदर बाहर करता रहा ना। हाँ। बिल्कुल करता। देखिए मैंने कल भी आपसे ये कहा था कि अगर आप विकेट नहीं ले सकते, रन तो रोक सकते हैं, एक साइड पे बॉलिंग तो कर सकते हैं, एक साइड की लेंथ तो पकड़ सकते हैं। बिल्कुल। दैट्स ऑल। और वही टेस्ट है बेसिकली, टेस्ट क्रिकेट, दैट्स व्हाट टेस्ट क्रिकेट इज। ऑफ पे फील्ड लिया, ऑफ पे बॉल कराते जाए ट्रिक करते रहे। बट एक जगह ऐसा लगा कि शायद गेम चेंज हो सकती थी। ऑब्वियसली आई डू नो फॉर अ फैक्ट कि बेनिफिट ऑफ डाउट बैटर को ही जाता है, लेकिन जिस कंडीशन में हमारे बॉलर्स थे, दिल से आवाज निकली कि यार ये हमें बेनिफिट होना चाहिए था। जरा मैं दिखाना शहजाद चाहता जो हूँ, ये विकेट है इस पे तो बेनिफिट बॉलर को मिलना चाहिए था। है ना? ये देखें, वाह। लुक प्रीटी प्लम टू मी। या रिव्यू लेने के लिए उन्होंने शान को काफ़ी परसुएड किया। शान ने फाइनली सोचा कि मौका भी यही है, हम ले लेते हैं। और पिच भी आउटसाइड ऑफ हो रही है, लग भी रही है। इट्स हिटिंग ऑन नी रोल। आई मीन धर्मासेना इज वेरी एक्सपीरियंस्ड बैट्समैन। अगर उसकी उनकी कॉल ये होती कि आउट है तो देन वुड हैव तो फिर वो आउट ही होता, and Yes, the delivery this- following that, yeah. yes. दिस लुक्ड प्रीटी क्लोज। हाँ. है ना? If you और ask इस पे हम me. रिव्यू नहीं लिया, But he touched the bat. अगेन he touched the टच द bat. बैट, यस। या इस मौके पे ऐसा लगा, बस दिल से आवाज है कि यार अब एक विकेट चाहिए थी। अगर मिल जाती तो मेरा ख्याल है could have been very different as well. Everybody got together as to what's happening, but then they went for a break. But moving on from here, एक और चांस भी हमें मिला था। मैं जरा वो चांस भी दिखाना जी, चाहता हैरी हूँ। आमिर ब्रुक का। जमाल्स डिलीवरी। बिल्कुल। I think if we can move on to that, you know, there was another chance of Harry Brook, you know, the two gentlemen who's actually on the crease. Look at that. A rather- So it went, it touched the wicket, but the players didn't come off. It's Wow. the ball stopped in its track. ये कोई गायबाना ताकत थी जिसने बॉल को रोक लिया, but हैरी ब्रुक was very very lucky here. Yeah, Annabelle was here. 75 पे खेल रहा था। Yeah. दिस एक्सट्रीमली लकी। हालांकि इतने में बेल्स गिर जाती थी हाँ. वैसे, पूरा बॉल लगा है विकेट। जी 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 जी। Yeah, this could have changed. You know, we could have saved our day. हम ये जो अभी 700 750 की बात कर रहे हैं और उसके बाद 250 सेकंड इनिंग में चेंज करने की बात कर रहे हैं। Very quickly, Shoaib bhai, to wrap it up, what do you think? Would we be able to do it? अगर ये देखें खेल वो कल आएंगे, कल लंच तक खेलेंगे और तेज खेलेंगे, वो कोशिश करेंगे 250 रन बनाएं। और फिर उसके बाद हम वो जैसे हमारा ऑलराउंडर कहता है लटायर, अपना वो छोड़ देंगे इनिंग्स और वो कोशिश करेंगे पाकिस्तान को 300 कराएं जो कोलैप्स होगा, और 300 में अगर 150 की रन की लीड हुई तो पाकिस्तान विल बी इन ट्रबल। वो पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा। बट ladies and gentlemen, here onwards, let's move on towards what's going to happen in ICC Women's T20 World Cup tomorrow. Which two teams are going to come together? From here onwards, it's going to be one game only every single day towards the final of the ICC Women's T20 World Cup 2024. It will be Bangladesh versus West Indies. West Indies won their last game, Bangladesh lost their last game, Bangladesh won their first game, and West Indies lost their first game, you know. So it's going to be a tricky game for both of them. We'll talk about it tomorrow, inshallah. For everybody who's out there, Khawateen और ज़्यादा आपसे inshallah सुबह मुलाकात होगी with Maheen and Shoaib bhai. Shoaib bhai, thank you so much for always Thanks. being so kind and brainy with cricket and whatever questions we throw your way. For everybody who's out there, ladies and gentlemen, look after yourselves. Fi aman Allah. Allah Hafiz. 1, 2, 3. Game on. Game on है. Good night.